Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this session we will have a discussion on the questions of engineering mathematics which has been asked in the civil forenoon session. As these questions are memory based questions, so whatever I am having till now we will solve here in this. Let's start. So the very first question we are having from the Newton Labs. And as I told you, okay, in that session, I hope you guys remember जो session मैंने लिया था, okay, after the conclusion of 7th and 8th February. And I told you in that session कि sure there is a chance कि one question आपको दिखाई देगा न्यूटन रैप्सन का, क्योंकि अभी तक वो untouched रहा है. Here we are having one question from the Newton Raphson. Okay, one of the very fixed type of question we can expect from the from the numerical method. So the question is talking about for the given fx equals to e power minus x. ठीक है, e power minus x initial root is 0.5. Find the value of x1 मतलब next root using the Newton Raphson method. ठीक है, सबसे पहले we can write down the function is nothing but e to the power minus x. We can cross check. Yes, it is. And initial root is given to us x0 is 0.5. एक बार cross check कर लिया जाए. Yes. We are having the value is here nothing but 0.5. ठीक है, so I will use here, I need to go for the Newton Raphson. So x1 equals to x0 minus f of x0 by f dash of x0. Simply using this formula and we can we can apply the result. तो सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले यहाँ से फंक्शन आपके पास है, इसके लिए f dash x निकाल लेते हैं. f dash x will be minus e power minus x और minus 1 हो जाएगा. ठीक है, we are having the initial root, let's put here the value. और जो फंक्शन आपके पास था e पावर माइनस एक्स, लेट्स पुट हियर द वैल्यू 0.5. तो 0.5 e पावर माइनस 0.5 माइनस 0.5 और यहाँ भी रख दो f डैश ऑफ 0.5 which is minus e पावर माइनस 0.5 और माइनस 1. ठीक है, लेट्स पुट हियर द वैल्यूज एंड कैलकुलेट इट. x1 इक्वल्स टू x0 0.5 ये रहा, माइनस फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ रही है e टू द पावर माइनस 0.5 और माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है माइनस ई पावर माइनस 0.5 और माइनस 1. यस, वी नीड टू कैलकुलेट हियर. व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग द रिजल्ट. जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये बनना चाहिए ई टू द पावर माइनस 0.5. ठीक है, और माइनस 0.5. ठीक है, so I can write down here also the result given is 0.5. This is giving me 0.106. okay, और ये दे रहा है आपको माइनस ई टू द पावर माइनस 0.5 और फिर माइनस 1. okay, this is giving you माइनस 1.606. इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए तो 0.106 डिवाइडेड बाय 1.606. ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ रहा है. वी आर गेटिंग हियर द रिजल्ट विच इज 0.5 और प्लस 0.666. हाँ, माइनस माइनस आ रहा है. ओके, सो इट इज गिविंग यू 0.5 और माइनस माइनस प्लस 0.106 और डिवाइडेड बाय 1.606. yeah, we're getting the result 5.66, sorry 0.566. 0.566 ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है बेटा. ठीक है, अगर आप टू डेसिमल प्लेसेस लिखना है तो 0.57 भी लिखा जा सकता है, डिपेंड्स ऑन द ऑप्शंस. ठीक है, अगर ऑप्शंस है नहीं है, अगर एनईटी है तो भी यू कैन सॉल्व इट एंड यू कैन गेट द रिजल्ट. सो वी आर गेटिंग हियर द रिजल्ट 0.566 और 0.57. ठीक है, दोनों में से जो सही लगे आप लिख सकते हैं. दिस विल बी द आंसर. तो सिंपल क्वेश्चन था, न्यूटन रेप्सन को अप्लाई करना है. वॉट एवर इट इज गिवन टू यू, यू नीड टू सॉल्व. ठीक है, चलिए let's talk about next question which is from the probability. Question is talking about there are two bags in first. There are two bags in okay, there are two bags, दो bags आपको given है. In first bag we are having 4 by 10 6 black balls. ठीक है, in second bag we are having 4 by 10 3 black balls. Okay, if one black ball is drawn randomly then find the probability that it was drawn from the first bag. ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ये क्वेश्चन है आपका डायरेक्टली बेस थ्योरम का. We already discussed this type of question. So first of all you should find out here the total probability of being black color. और फिर आपको चाहिए बैग वन में से, तो हम निकाल देंगे. ठीक है, सो हाउ वी कैन सॉल्व, एक काम करते हैं, यहाँ पे दो बॉक्सेस बना देते हैं. दिस गिव्स यू द बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2. दिस इज योर बॉक्स नंबर. ठीक है,
इन फर्स्ट वन और इन सेकेंड वन। फर्स्ट में आपके पास ब्लैक कितनी है, व्हाइट और ब्लैक दो कलर है, व्हाइट है 4, ब्लैक है 6, यही है। इन सेकेंड वन 4 एंड 3, तो व्हाइट है 4 और ब्लैक है 3, टोटल हो गया 7। हियर वी आर हैविंग टोटल बॉल्स एज इन 10। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ से ब्लैक कलर की बॉल आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल। तो आई एम गोइंग हियर फॉर दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कलर बॉल, ठीक है, फ्रॉम द बॉक्स 1। तो ब्लैक कलर आ जाए, मतलब सिंपल ब्लैक की 6 है मैम, टोटल है 4, तो इट शुड बी नथिंग बट, टोटल है 10, तो क्या हो जाएगा 6/10, ठीक है, 6C1/10C1। और अगर इसमें से आप ब्लैक कलर निकालना चाहते हो तो इट शुड बी ब्लैक, वी आर हैविंग 3, टोटल है 7, इज नथिंग बट 3/7। आई एम हैविंग हियर कोल्ड, तो you need to manage with this voice only, ठीक है, there is no scope of the better voice right now, तो ठीक है, चलिए, ठीक है, तो दिस इज सिंपल थिंग। नाउ मैम इट्स मेंशन हियर दी रैंडमली सेलेक्ट करना है, ठीक है, रैंडमली वी नीड टू ड्रॉ द बॉल। तो श्योरली व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू गो हियर विद द बैग सिलेक्शन भी करना होगा, आप दोनों में से किसी भी बैग को सेलेक्ट करो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग एनी बैग इज नथिंग बट 1/2, क्योंकि दो बैग है और दोनों के ही आने के चांसेस बराबर बराबर है। नाउ लेट्स गो विद द टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी या फिर टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ब्लैक बॉल, ठीक है। द केसेस कैन बी, पहले क्या किया, पहले हमने फर्स्ट वाले बैग को सेलेक्ट किया, फिर उसमें से हमने ब्लैक कलर की बॉल ली, और आई विल गो विद, आई विल सेलेक्ट द सेकंड बैग और उसमें से मैंने ब्लैक कलर की बॉल ली, ठीक है, यही तो होगा। तो मैम सिलेक्शन 1/2, ब्लैक कलर की बॉल इसमें से आने के चांसेस कितने हैं, 6/10 है, ठीक है। देन हियर वी कैन गो विद प्लस अगेन 1/2, और यहाँ था 3/7। लेट्स टेक 1/2 आउटसाइड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6/10 इज नथिंग बट 3/5, तो 3/5 प्लस 3/7, थोड़ा और सॉल्व कर लिया जाए, 1/2 एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 35। तो दिस इज गिविंग यू 7 टाइम्स, 7 into 3 21, दिस इज गिविंग यू 5 into 3 15। तो वी आर गेटिंग बेसिकली 1/2 यहाँ से बन रहा है 36/35। इसको और अच्छे से सॉल्व करना चाहते हो तो उसको सॉल्व कर लो, गेटिंग 18/35, या फिर इसको एज इट इज रखोगे तो भी मुझे तो चल जाएगा। ओके, नाउ आई नीड टू गो हियर विद, मुझे चाहिए डेडिकेटेडली किस में से, रिक्वायर्ड ब्लैक बॉल फ्रॉम द बैग 1, किस में से चाहिए, बैग 1 में से, ठीक है, जिसको हम बेस थ्योरम बोलेंगे। तो मैम फेवरेबल ये रहा, टोटल जो आपने निकाला, फेवरेबल इज नथिंग बट 1/2 इंटू 6/10, या फिर इस 6/10 को आप 3/5 लिखो तो लिख दो, डिवाइडेड बाय टोटल ये रहा 1/2 इंटू 36/35, ठीक है, 1/2 गया, we can solve it, and while we are solving it is, this is 3/5, this is 35/36, तो 7 times, और यहाँ से आ जाएगा 1 और 3, नहीं 1 और 2, सॉरी 1 और 2, so we are getting the result here 7/12। तो आंसर आना चाहिए आपका 7/12। अगर आपको डेसिमल में निकालना है, आई डोंट नो वेदर द ऑप्शंस अवेलेबल और नॉट, अगर एनएटी था और डेसिमल में निकालना था तो 7/12 डिवाइड कराओगे तो अप्रोक्सीमेटली 0.583 आ जाएगा। वी विल गो इन द डेसिमल तो 0.583, या तो ऐसे लिख दो, ठीक है, या फिर इफ यू आर हैविंग द ऑप्शंस यू कैन गो विद द ऑप्शंस एज इन 7/, इजीली वी कैन सॉल्व एंड वी कैन गेट द रिजल्ट, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, बेस थ्योरम एक्सपेक्टेड था, मैंने कहा था आपको देयर इज अ हाई चांस। देखो इस बार अभी तक ना क्वेश्चंस बेसिक्स प्रोबेबिलिटी में से नहीं आए, लेकिन क्वेश्चन जो आए प्रोबेबिलिटी के अच्छा है। लास्ट सेशन में, लास्ट मतलब 7th और 8th में क्वेश्चन आया था कंडीशनल का, अभी क्वेश्चन आपके पास आया है किसका, बेस थ्योरम का, ठीक है। तो अभी तक बेसिक को इन्होंने टच नहीं किया है। ऑलराइट, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन। वी आर हैविंग यूजिंग चॉल्स्की डिकम्पोजिशन फॉर द मैट्रिक्स। वी आर हैविंग अ मैट्रिक्स ए, और इसके लिए आपको L22 की वैल्यू निकालनी है विद द मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब समझते हैं, मॉड्यूलस का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो पॉजिटिव ही लेनी है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो वेरी वेल मैम, चॉल्स्की डिकम्पोजिशन मतलब सिंपल एलयू डिकम्पोजिशन। तो ए इक्वल्स टू, चॉल्स्की में होता है ए इक्वल्स टू एल इंटू एल थीटा। एल थीटा का मतलब समझते हैं, थीटा मतलब यहाँ पे ट्रांजुगेट की बात हो रही है, सिंस यू कैन सी, ठीक है। चॉल्स्की तब अवेलेबल होता है जब आपके पास मैट्रिक्स कैसी हो, कॉम्प्लेक्स हो। हियर यू आर हैविंग द रियल मैट्रिक्स, so in this case since the matrix is real matrix तो L theta will be nothing but L transpose, दो सेम ही आने वाली है। अरे बाबा, अगर I will have here the complex matrix,
तो आप उसका पहले कॉन्जुगेट निकालते फिर ट्रांसपोज निकालते ना। वी नो वेरी वेल कि मैम एल थीटा इज नथिंग बट एल बार और फिर उसका ट्रांसपोज होता है। बट सिंस हियर वी आर हैविंग द रियल मैट्रिक्स, हियर वी आर हैविंग रियल मैट्रिक्स, इसीलिए क्या हो जाएगा, एल थीटा की वैल्यू एल ट्रांसपोज के बराबर आएगी। तो अगर आप यह सिंपल एल इंटू एल ट्रांसपोज लिख दोगे तब भी चल जाएगा। what I will solve, I will go here with a equals to l into l transpose। l की वैल्यू आपके पास, अच्छा मैट्रिक्स की वैल्यू है हमारे पास, l की वैल्यू हम लिख सकते हैं l11 सॉरी l11, here I will go with 0 l21 और l22, ठीक है। मल्टीप्लाई विद द ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ बन जाएगा l11 0, यहाँ बन जाएगा l21 और l22, ठीक है। और वैल्यू वी आर हैविंग हियर ऑफ a, तो या तो यहाँ लिख दो या फिर एक काम करते हैं थोड़ा सा यहाँ हम लिख लेते हैं a equals to l into l transpose, so that we can proceed and we can write down the value of a which is 9 15 15 9 15 15 और 50। प्लीज क्रॉस चेक द वैल्यू 9 15 15, एकदम बढ़िया है। राइट, so let's approach it, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन करना होगा, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आएगा, देन वी कैन गो विद द कंपैरिजन। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे मैम, वी आर गेटिंग l11 स्क्वायर ओनली। फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो l11, हियर वी कैन राइट डाउन l21 प्लस फर्स्ट रो को इससे कराया और सेकंड में करा रहे हो तो यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, क्योंकि ये सेकंड वाला एलिमेंट आपके पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो l11 l21, what I can put here the value l11 और l21 आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट हियर व्हेन वी विल मल्टीप्लाई द सेकंड रो विद द फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस इज l21 और l11, ठीक है। l21 l11 और सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो दिस इज l21 l11, अरे सॉरी l21 स्क्वायर, तो थोड़ा सा मैं विल गो विद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से बन जाएगा l21 स्क्वायर और प्लस यहाँ बन जाएगा l22 स्क्वायर। कैन यू सी, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, करना कुछ नहीं है बहुत ज्यादा। तो सिंपल व्हेन वी आर गोइंग विद द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे आपके पास कंपैरिजन के लिए ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो डीकंपोजिशन में हम अच्छे से जानते हैं कि व्हेन वी आर कंपेयरिंग ओनली वी कैन फाइंड आउट द रिजल्ट, बिना कंपैरिजन के तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। व्हेन यू आर गोइंग फॉर द कंपैरिजन यू कैन सी l11 स्क्वायर की वैल्यू 9 आ रही है मैम, l11 स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो मतलब l11 की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस 3 आ रही है, बट यू नीड टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू क्योंकि आपको मॉड्यूलस पूछ रहा था, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप नेगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं लेंगे, आई विल सजेस्ट यू टू गो विद द पॉजिटिव ओनली, सजेस्ट यू टू गो विद द पॉजिटिव ओनली। फिर उसके बाद इफ आई विल कंपेयर दिस वन, यहाँ से कंपेयर कराएंगे, l11 की वैल्यू ऑलरेडी आ ही गई है, दैट इज इक्वल्स टू 15, l11 की वैल्यू आ रही है 3, 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे किसके साथ, l21 इक्वल्स टू 15, तो आई एम गेटिंग हियर द वैल्यू ऑफ l21 इक्वल्स टू 5। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए l22 की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से कंपैरिजन हो सकता है बिकॉज ये तो हो ही गया, दोनों वैल्यू सॉल्व कर ली, यहाँ से कंपैरिजन हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 50। तो इफ आई विल गो विद द कंपैरिजन, अच्छा यहाँ दूसरा क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, सॉल्व कर लेते हैं। We can go with this one which is l21 square plus l22 square and that is equals to 50. When we are going with the comparison, can we see, yes, l21 square plus l22 square equals, ठीक है। when you are comparing l21 की वैल्यू आपके पास आई है 5, तो it should be 5 square plus l22 square equals to 50. so मैम l22 square should be equals to 50 minus 25, मतलब 25 वैल्यू आ रही है, L22 स्क्वायर की वैल्यू 25 आ रही है। यू आर लुकिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ L22 जो कि प्लस और माइनस 5 आएगा। अगर उसने वैल्यू मॉड में नहीं पूछी होती, ठीक है, या मैग्नीट्यूड की फॉर्म में नहीं पूछी होती, देन आई कैन गो विद द आंसर एज एन +5 और -5, बट सिंस इट इज आस्किंग टू मी द वैल्यू ऑफ L22, आई विल गो हियर विद द रिजल्ट हियर एज एन 5, ठीक है। सो द सिंपल रिजल्ट वी कैन अप्रोच हियर, इट शुड बी नथिंग बट 5, ठीक है। तो ऑप्शंस मेरे पास नहीं थे, बट वॉट एवर इफ इट इज NAT देन यू कैन सॉल्व, और अगर ऑप्शन है तो भी अकॉर्डिंगली यू कैन सॉल्व एंड यू कैन गेट द रिजल्ट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का, या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है। एज आई टोल्ड यू कि लास्ट 2-3 सालों का ट्रेंड अगर आप देखोगे तो यू कैन सी कि क्वेश्चंस किस में से पूछे जा रहे हैं, दे यूज्ड टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द यूलर्स कोशी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके पास फिर से आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट, जनरल सॉल्यूशन निकालना है, सिंस मेरे पास ऑप्शंस नहीं है, ऑप्शंस में कांस्टेंट विद द कांस्टेंट दिया गया था, ये तो मुझे समझ में आ रही है बात। जो ऑप्शंस अवेलेबल थे उन ऑप्शंस में आपको जो रिजल्ट लिखना है वो
इन फॉर्म ऑफ द कांस्टेंट, मतलब C1 C2 या A और B की फॉर्म में लिखा गया था, तो आई विल गो विद द सॉल्यूशन और उसके बाद आप मैच कर सकते हैं कि आपका आंसर वो आया कि नहीं. So here we can go with this one. What it is? X square d2y by dx2 minus 6y equals to 0. Can I write down? Yes, we can. देखिए एज वी नो वेरी वेल, ये क्या है, ये हमारे पास यूलर्स कोशीज इक्वेशन है, जहाँ पे हम पुट करते हैं x d बाई डी एक्स की जगह हमेशा q, या q नहीं रखना है तो थीटा रख लो. एज आई टोल्ड यू कि कई लोग q रखते हैं, कई लोग थीटा रखते हैं, कई लोग कैपिटल D रखते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप कर लो, चलेगा हमको. फिर एक्स स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू के प्लेस पे आप रख सकते हो थीटा और थीटा माइनस. देखिए वी आर हैविंग ए स्क्वायर टर्म ओनली, तो वी कैन प्रोसीड हियर विद दिस वन. क्या हो जाएगा? इट शुड बी थीटा और थीटा माइनस 1 और माइनस 6 आ रहा है और y की वैल्यू 0. लेट्स गो हियर विद द ऑक्सिलरी इक्वेशन. थीटा को रिप्लेस करा दो m से. व्हेन यू आर गोइंग विद दिस वन, इट इज m minus 1 minus 6 equals to 0. So m square minus m minus 6 is equals to 0. And we know very well whenever we are having this Euler's Cauchy equation, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, you need to put here x की जगह आप e power z रखते हो या फिर z की जगह log x करते हो, है ना, जो दोनों में से जो अच्छा लगे कर सकते हो. तो when I will go here with the solution, मतलब मुझे प्रोडक्ट कराना है दो ऐसे नंबर का कि जहाँ प्रोडक्ट कराने पे तो -6 आए प्लस या माइनस कराने पे -1 आ जाए. I can go with -3 and 2. It is giving me -6 and -1. ठीक है, तो I will write down m square minus 3m plus 2m minus 6 equals to 0. m we can take outside, यहाँ से बन रहा है m minus 3. 2 we can take outside, यहाँ से बन रहा है m minus 3. We are getting the result m equals to 3. We are getting the result m equals to -3 -2. जो रूट्स आपके पास बन रहे हैं वो क्या बन रहे हैं? We are getting the roots here from 3 and -2. ठीक है, तो 3 and -2 है. Here you can write down the YCF will be the Y general solution only. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है x square d2y by dx2 equals to 0 आ रहा है ना, तो सामने वैल्यू कुछ आ ही नहीं रही है. या इट शुड बी द फॉर्म ओनली. व्हेन यू आर राइटिंग दिस शुड बी c1 e to the power. ठीक है, c1 sorry, when we are going with the solution, so we can go with the general solution here. C1 e to the power -2 और 3 आ रहा है ना, 1 e to the power -2z और C2 e to the power 3z. What you can do, you can, when you are going with the general solution, c power z की जगह x रख दोगे तो यहाँ से बन जाएगा C1 और C1, ओके, और बाई एक्स स्क्वायर और C2 और यहाँ बन जाएगा एक्स क्यूब. मेरे हिसाब से ये आपका आंसर आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. अगर ऑप्शंस में C1 C2 की जगह PQ AB या कोई भी कांस्टेंट की फॉर्म में लिखी है, दैट वी कैन राइट डाउन अकॉर्डिंगली. ठीक है, C1 बाई एक्स स्क्वायर और C2 बाई एक्स क्यूब. तो कांस्टेंट जो भी लिखा है आप C1 C2 की जगह AB PQ जो भी लिखा है अकॉर्डिंगली यू कैन. सो दिस शुड बी द आंसर. चलिए अब बात करते हैं एक क्वेश्चन फ्रॉम द लीनियर अलजेब्रा. व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, गिवन द मैट्रिक्स P वी आर हैविंग 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 और 1 0 1. ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको? विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट, आई थिंक ये 1 0 1 नहीं होना चाहिए. अगर 1 0 1 होगा तो फिर तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेक कर लिया जाए एक बार कि मैट्रिक्स जो दिया है वो क्या है, जो मैट्रिक्स आपको दिया है वो क्या है. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. आई थिंक यही था जो मेरे पास डेटा आया उसमें, तो यही है, इसी के हिसाब से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट, ये मैट्रिक्स आपको दी है और पूछ रहा है कि बताओ उसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा. ठीक है, तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली. मैट्रिक्स दी है उसको पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसके कंक्लूजन पे आएंगे. वी आर हैविंग हियर 1 0 1. ठीक है, फिर है 0 1 0 और फिर है 1 0. दिस इज अ 3x3 मैट्रिक्स. अब सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं, आई थिंक ये क्वेश्चन एमसीक्यू था, एमएसक्यू नहीं है. अगर ये एमएसक्यू नहीं है तो हम इसको ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है. फर्स्ट ऑप्शन आपके पास है ट्रेस ऑफ पी इज इक्वल टू सम ऑफ द आइगन वैल्यूज. यस वी नो वेरी वेल मैम कि ट्रेस इज नथिंग बट, ट्रेस मतलब होता है सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, और सम ऑफ आइगन वैल्यू भी होता है प्रिंसिपल सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स. राइट, सम ऑफ आइगन वैल्यूज का मतलब भी ट्रेस ही होता है. तो ये स्टेटमेंट तो 100% ट्रू है. राइट, प्रॉपर्टी बेस्ड स्टेटमेंट है, बिल्कुल 100% करेक्ट है. फिर पी आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. अब स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए क्या होता है, वी नो वेरी वेल कि मैम अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो पी ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस पी होना चाहिए. हमने पढ़ा है कि व्हेन द मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो उसके लिए प्रिंसिपल डायगोनल की वैल्यू 0 होगी और मिरर इमेज बनेगी विद द अपोजिट साइन. कैन यू सी, यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है? नहीं है. मिरर इमेज है, मिरर इमेज तो है बट सेम टू सेम है. ठीक है, अपोजिट साइन के साथ नहीं है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता. तो ये स्टेटमेंट आपके पास हो गया रॉन्ग बेटा.
It is asking P transpose P is an identity matrix. P transpose P is an identity matrix. ठीक है, अब P transpose P is an identity matrix मतलब समझे, ऑर्थोगोनल की बात कर रहा है, P transpose equals to I हो, तो ऑर्थोगोनल की बात कर रहा है, तो यहाँ पे when I'm talking about this one, ठीक है, इसको इसको भी थोड़ा सा आपको प्रूव करके बता देते हैं, तो भी थोड़ा सा प्रूव करके बता देते हैं। सिंस आई कैन सी दिस इज नथिंग बट अ सिमेट्रिक मैट्रिक, जो मुझे दिख रहा है ये सिमेट्रिक है। अगर ये सिमेट्रिक है तो मैम पी ट्रांसपोज पी इक्वल्स टू वाई है। अगर आप ये चेक करते हो तो पी ट्रांसपोज का मतलब क्या हुआ, पी ट्रांसपोज का मतलब पी हो गया, तो पी इंटू पी इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। तो मतलब अगर आप इसका क्या निकालोगे, पी स्क्वायर निकालोगे, तो वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। तो आई डोंट थिंक कि जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, नहीं बनेगी। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट। ठीक है, अब बच्चों को लगता है कि मैम है डायरेक्टली हम चेक कर सकते हैं। अच्छा एक और बताऊं आपको डायरेक्ट करने का तरीका, बिकॉज दिस इज द डिफाइन ऑफ पी ट्रांसपोज इक्वल्स टू आई, दिस इज द डिफाइन ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और हम अच्छे से जानते हैं कि अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो डिटरमिनेंट प्लस या माइनस वन में से कुछ आएगा। लेकिन व्हेन यू आर चेकिंग दिस मैट्रिक्स, आप यहाँ देखोगे तो यू कैन सी फर्स्ट एंड थर्ड रोज आर आइडेंटिकल बेटा। द फर्स्ट और थर्ड रो आइडेंटिकल, इसका मतलब समझे, इसका मतलब मैम डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है। वी नो वेरी वेल if in any matrix minimum two rows और columns are identical तो determinant हमेशा जीरो होता है। तो मैम determinant जीरो, ये बात हम यहाँ से समझ ही गए थे। ठीक है, तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि determinant की वैल्यू जीरो है। अब determinant की वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब मैम कैसे होगा, फिर तो ऑर्थोगोनल हो ही नहीं सकता। तो आप यहाँ से भी इसको प्रूव कर सकते थे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। तो आई विल गो विद पी स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, पी ट्रांसपोज आइडेंटिटी नहीं है, ईच आइगन वैल्यू इज ऑफ मैग्नीट्यूड वन। क्या यहाँ पे सारी की सारी आइगन वैल्यूज मैग्नीट्यूड वन की आएगी, नहीं आएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हियर वी आर हैविंग ओके वी आर हैविंग द डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो, तो कोई एक आइगन वैल्यू जीरो होगी, ये तो तय है। इट्स आस्किंग कि ईच आइगन वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड वन, मतलब सारी की सारी आइगन वैल्यू वन 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 आने वाली है क्या, नहीं आएगी। वन ऑफ द आइगन वैल्यू विल बी जीरो, दैट फॉर श्योर। क्यों, क्योंकि मैम यहाँ पे डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो। ऑल्दो सम आपके पास थ्री आ रहा है तो सम विल बी थ्री, बट स्टिल सम विल बी थ्री। देखो अगर आप इसको कोई बच्चा अच्छे से बनाना भी चाहे ना तो भी यू कैन मेक इट फ्रॉम हेयर, since we can see the determinant is zero, determinant zero मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू जीरो, इसका मतलब ये तो तय है कि एक आइगन वैल्यू, अगर आपके पास 3x3 की मैट्रिक्स है तो एक आइगन वैल्यू तो जीरो होगी ही। अब रिमेनिंग में आप कुछ भी रखोगे, ठीक है, अब ये भी हो सकता है 0 0 3 हो जाए, ये भी हो सकता है कि 0 1 2 हो जाए। अब ऑल्दो आप आइगन वैल्यू निकाल दोगे तो पता भी चल जाएगा, बट आई विल से कि हाँ जरूरत नहीं है आइगन वैल्यू निकालने की, आई कैन कंक्लूड डायरेक्टली क्योंकि एक आइगन वैल्यू जीरो आ रही है, सो ईच आइगन वैल्यू विल नॉट हैव मैग्नीट्यूड वन। हम तुरंत इस बात पे कंक्लूड कर सकते हैं। अब चाहे इसके बाद 0 0 3 है आइगन वैल्यू है, 0 1 2 है, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सो दिस इज द एमसीक्यू ओनली, मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट है, और एक ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, ये वाला है, जहां ट्रेस की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, या सम ऑफ द आइगन वैल्यू। चलिए एक क्वेश्चन हमारे पास है जो कि इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इंटरपोलेशन का क्वेश्चन है। वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग द लैग्रांजेस इंटरपोलेशन। ठीक है, अब लैग्रांजेस इंटरपोलेशन क्या होता है, एक काम करो आप पहले ना यहाँ पे लिख लेते हैं हम, so it gives you the clarity कि how we can solve this one, and I will go with the Lagrange's interpolation. I will talk about the three roots only, first three roots की ही बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर द Lagrange's इंटरपोलेशन। ठीक है, लैग्रांजेस इंटरपोलेशन लगाने से फायदा ये है कि आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ज्यादा आपको कुछ सोचना पड़ेगा नहीं। इफ यू विल गो विद दिस वन, सो दिस सेज fx इक्वल्स टू x माइनस x1। ठीक है, x माइनस, क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्लीन करके दोबारा लिखा जाए। यस, तो हियर वी आर हैविंग fx इक्वल्स टू x माइनस x1 माइनस x1 x माइनस x2, या फिर पहले एक काम कर दो y0 से स्टार्ट कर दो, y0 x माइनस x1 x माइनस x2 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 0 माइनस x2। ठीक है, देन वी कैन गो विद क्या, वापस हम सेकेंड रूट में जाएंगे तो y1 इज x माइनस x0 और x माइनस x1 की बात होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि x2 पे तो हम बात ही कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1 x0 माइनस x2 तो हम लिख ही चुके थे, नहीं यहाँ x2 ही रहेगा, सेकंड की बात कर रहे हो ना। ठीक है, तो x माइनस x0 x माइनस x2, दिस इज नथिंग बट x1 माइनस x0, और यहाँ बनेगा x1 माइनस x2।
ठीक है, y1। और इफ आई विल गो हियर विद द y3, अगर हम y3 की भी बात करें तो यहाँ से बन जाएगा x माइनस एक्स टू से स्टार्ट किया जा सकता है, या x0 से करो तो भी चल जाएगा, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है। x माइनस x1, और यहाँ बन जाएगा आपके पास x2 माइनस x0, और ये दिस इज x2 माइनस x1। ये थोड़ा सा ना ऐसा हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, बट चलेगा। ठीक है, तो वी आर हैविंग हियर द वैल्यू x माइनस x0, x माइनस x2, और x माइनस x0, x माइनस x1, x2 माइनस x0, और x2 लिखा था मैंने, यहाँ x0 नहीं लिखा था, x2 माइनस x1, x2 माइनस x0 और x2 माइनस x। ठीक है, सारी वैल्यूज हमारे पास है। y2, अरे बाबा, y2, y0, y1 और y2। ठीक है, नाउ वी कैन गो विद दिस वन, हम सॉल्व कर सकते हैं। पहले जो टेबल आपके पास है उसमें से आप समझ लो, हियर वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ y0, दिस इज y1, दिस इज y2, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू वहीं तक जाएगी, दिस इज x0, x1 और x2। अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू तो रखनी ही पड़ेगी। यस मैम, व्हेन वी आर पुटिंग द वैल्यूज इन द फॉर्मूला, तो हाउ वी कैन सॉल्व, थोड़ा सा स्पेस मुझे यहाँ चाहिए होगा। तो आई विल गो हियर विद द एफ ऑफ एक्स, जिसको हम पी एक्स बोल सकते हैं। तो व्हाट वी आर फाइंडिंग बेसिकली द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स या पी एक्स। बाद में आप उस एक्स की जगह जीरो रख देना, क्योंकि शायद उसने जीरो पे पूछा है। यस, इट इज आस्किंग द रिजल्ट एट जीरो, लेटर ऑन वी कैन पुट हियर द वैल्यू एज इन जीरो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। y0 की वैल्यू जो आपके पास आ रही है बेटा, वो कितनी आ रही है मैम? y0 आ रहा है 28। आई विल स्टार्ट हियर विद द 28, और यहाँ बन रहा है x माइनस x1। कैन यू सी x1 इज 1। ठीक है, तो x माइनस x1 मैं लिख देती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली, और फिर हम उसको बाद में कंपेयर कर लेंगे। x माइनस 1, और ये बन जाएगा x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x0 था, तो x0 की वैल्यू आ रही है आपके पास -2, है ना। तो यहाँ से बन जाएगा कितना बेटा? -2 -1, अगर ये x1 है तो, और फिर -2 और -2। ठीक है, -2 और -2, थोड़ा सा हमको मल्टीप्लीकेशन करना ही होगा यहाँ पे, तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर रखा है। सो आई विल राइट डाउन द वैल्यूज हियर डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 28 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है वो आपके पास आ रहा है 4। व्हेन यू विल पुट हियर, इट इज गिविंग यू x+2 और x-2। ठीक है, और यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितना बन रहा है, ये भी नजर डाल लो। ये बन रहा है x1 माइनस x0, x1 माइनस x2। x1 माइनस x0 मतलब 1 माइनस माइनस प्लस 2, और x1 माइनस x2। ठीक है, 1 माइनस 2। वी कैन गो हियर विद दिस वन, 1 प्लस 2 और 1 माइनस 2। ठीक है, और फिर 4 हम लगा ही चुके हैं, और इसमें वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बेटा 16। 16 आ रहा है, तो x की वैल्यू यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा, तो आई नीड टू गो हियर विद x माइनस x0 और x1, है ना। x0 -2 है और ये 1 है, तो आई विल गो हियर विद x -2 और x +1। ठीक है, -2 और +1 क्यों? अरे उल्टा लगा दिया, माइनस तो वहाँ था और प्लस यहाँ था। x+2 और x-1, और यहाँ वैल्यू आपके पास बन रही है x2 x0, x2 x1। कैन यू सी x2 x0 मैम 2 2 2 और +2 हो जाएगा, और x2 x1 2 -1 हो जाएगा, है ना। तो 2 + 2, और यहाँ बन जाएगा 2 -। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक सभी को बात समझ में आ रही है। हाउ वी कैन प्रोसीड आफ्टर दैट, वी कैन गो फॉर द फाइनल रिजल्ट। तो उसको थोड़ा सा और यहाँ लिख लिया जाए, तो आई कैन राइट डाउन हियर 28 इंटू x-1 x-2, और ये बन जाएगा -4 और -3, तो दिस इज गिविंग मी +12। ये थोड़ा अलग था। फिर यहाँ से प्लस में वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4 इंटू x+2 और x-2, और ये आपको दे देगा कितना? 3 और -3, और लास्ट यहाँ वैल्यू आ जाएगी 16, विच वी कैन राइट डाउन x+2 x-1, और ये दे देगा 4 और 1 विल बी 4 ओनली। ठीक है, नाउ अब आपको जो पूछा है आप डायरेक्टली वही कर लीजिए। इट्स आस्किंग यू द वैल्यू p2x, कहाँ पूछा है? x इज इक्वल टू 0 पे। p2x की वैल्यू कहाँ पे? x इज इक्वल टू 0 पे, तो वी कैन पुट हियर द वैल्यू p2x, और x की वैल्यू आप 0 रख सकते हैं। तो x की वैल्यू 0 रखोगे तो यू विल गेट द डायरेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, क्या हो गया इसको? ठीक है, व्हेन वी आर गोइंग विद दिस वन, x की वैल्यू 0 रख दें, तो आई कैन राइट डाउन द आंसर p20 विल गिव मी द 12। ठीक है, आई होप यू गाइस कैन सॉल्व इट एंड वी कैन गेट द रिजल्ट, क्योंकि सेकंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ यू विल पुट द 0, and you will put the 0 here, so this is 0 -1 0 -2, और यहाँ 12 आ रहा है, तो ये -3 आपके पास आएगा, this will give you 28/4।
ठीक है, यहाँ से 0 + 2 0 - 2 -4 आ रहा है, यहाँ से बन जाएगा माइनस माइनस कैंसिल 16/3 और 0 + 2 0 - 1, दिस इज गिविंग यू -2, ठीक है, और 16 आ रहा है तो 8 आ जाएगा। तो वी कैन सॉल्व एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। जो आना चाहिए वो 12 नहीं आना चाहिए, सॉरी 2 आएगा। ठीक है, द रिजल्ट वी शुड गेट हियर इज 2 नॉट 12, माय मिस्टेक। ठीक है, मुझे जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ से वो कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। Right, like this we can solve the question. So till now I'm having these questions only, which are the previous questions. Once the response sheet will release, we will go with more questions with the surety. Thank you.